अगर आप सोशल मीडिया पर थोड़ा भी एक्टिवेट हैं तो आपकी नज़र एक वायरल वीडियो पर ज़रूर पड़ी होगी, जिसमें एक लड़की रोते हुए दिखाई दे रही है और उसकी नाक पर कट नज़र आ रहा है जिसमें खून बह रहा है। ऐसे ही अगले वीडियो में लड़की की नाक पर पट्टी लगी हुई है। ये लड़की जोमेटो के एक डिलीवरी बॉय पर मारपीट का आरोप लगा रही है और इस वीडियो में इस पूरी घटना को बता रही है। अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि जोमेटो एक थर्ड पार्टी कंपनी है जो आपके ही शहर से आपके ऑर्डर करने के बाद रेस्टोरेंट से खाना डिलीवरी करने के लिए आपके फ़ोन के माध्यम से आपके घर तक पहुंचता है और खाना आप तक पहुंचाता है। खैर, इस वीडियो के सामने आने से जोमेटो पर कई तरह के सवाल खड़े हो चुके हैं और अब डिलीवरी बॉय की सफाई भी सामने आ गई है। बीते 6 दिनों से यह मामला सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। असल घटना यह हुई कि 10 मार्च की दोपहर हितेशा चंद्रानी ने जोमेटो के एक डिलीवरी बॉय पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि डिलीवरी बॉय ने उनकी नाक पर मुक्का मारा, जिसकी वजह से वह घायल हो गई हैं। अपलोड किए गए वीडियो में हितेशा चंद्रानी की नाक में खून निकल रहा है। इस पूरे मामले पर जोमेटो के डिलीवरी बॉय कामराज का पक्ष भी सामने आ गया है। साथ ही कंपनी के फाउंडर दीपक गोयल ने ट्विटर के माध्यम से भी अपना बयान जारी करा है तथा लोग भी सोशल मीडिया पर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। हितेशा चंद्रानी ने क्या आरोप लगाए हैं, यह हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। So guys, my Zomato order was late and I was talking to the customer care executive, and meanwhile the delivery person just did this. He hit me, left me bleeding here and ran off. Please share this video with everyone. उनका एक दूसरा वीडियो भी देखें जिसमें उनकी नाक पर ट्रीटमेंट के बाद पट्टी लगी हुई है। Guys, let me tell you the story, the entire story. I ordered food from Zomato because I was working since morning, and then I ordered around 3:30, which was supposed to get delivered by 4:30, and I did not get my order on time. So I was constantly, following up with Zomato team, like either give me a free delivery for the same or just cancel the order, because this is not the thing. You promise something and you deliver something else. So that thing happened, and then the Zomato delivery guy came here. What he did was, he was so rude, he was so freaking rude, and because I have sushi with me, so I usually don't open my full door, so I was just talking him through a small slit from my door, and I just told him, bhaiya, you wait, because I need to check with the team, either they'll make it free or I don't want the order. And I already gave him the choice, like, I don't need the order, so you just take it, I am okay. But he refused to take the order back, and then again he started screaming at me, bloody I'm your slave or what, you are asking me to wait for such a long time, what the hell. And so it was really threatening for me, and I got scared and I tried shutting my door so that he could not harm me. But before that, he pushed the door, and he was so huge, he pushed the door and he just snatched the order from my table. That is, he entered my house and then he punched me on my face so that I don't get back to him, and he ran away. And sadly, nobody in this premises care to hear anything happening. Nobody responds to any such thing happening. And being the single girl staying, it is so dramatic. Like, people do not come up to you, so which is insane. So guys, after that thing happened, I am at the hospital, and this is my current situation. And it seems like after the X-ray, my bone is broken. So we need to do a surgery for the same, and I can't talk because the moment I start talking, my eyes are starting watering and nose starts bleeding. So this is the update as of now. Also guys, so when I started this video, that snippet is after I visited the hospital, so I had put in just pictures where you can see how badly I am bleeding and what my condition is literally. And I am able to talk right now just because I had been to the hospital and they gave me some high antibiotics and painkillers. Because of that, I am able to talk this much. And also, thank you so much for Bengaluru, Karnataka police. Like, the police station I visited, they were like so humble and gentle, and they literally took care of my concern and they listened to me. And I was so scared after the incident, what happened. So they were like,
till the time we are alive, madam, you need not worry about whatever is going on. So that's the update, and I have all the FIR copy and the doctor prescription where it says it is a major damage which has happened to me. And you guys know me, like I being an influencer and face for you guys. If this gets ruined for me, I don't know what next stands there for me, but I would love if you guys really support and share this video as much as possible so that this does not happen to anybody out there. And thank you so much for watching. हितेशा चंद्राणी के वीडियो के वायरल होने के बाद जोमेटो ने ट्विटर पर अपना पक्ष रखा और कहा कि उसे इस पूरी घटना पर खेद है और भविष्य में ऐसा कभी ना हो इसकी वह पूरी कोशिश करेगा। साथ ही कंपनी ने हितेशा को पुलिस और मेडिकल सुविधा मुहैया कराने का भी आश्वासन दिया है। कंपनी ने हितेशा से माफ़ी मांगी और डिलीवरी बॉय कामराज को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। इसके बाद बेंगलुरु पुलिस ने आरोपी डिलीवरी बॉय कामराज को अरेस्ट कर लिया। विष्णु तिवारी नाम के एक व्यक्ति हाल ही में एक फेक रेप केस में 20 साल की सज़ा भुगतकर अब निर्दोष साबित हुए हैं तथा उनको रिहा कर दिया गया है। इस पूरे मामले में डिलीवरी बॉय कामराज का भी लोग सोशल मीडिया पर जमकर पक्ष ले रहे हैं। ನಮ್ಮ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಕಡೆಯಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಾಗಿದ್ದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತವ್ರೆ। ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಲಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫೇಸ್ 1 ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಅವರು ನನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ನನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ। ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಅನಿಲ್ ಸರ್ ಅವರು ನನಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಈ ಕೇಸಿಂದ ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। कामराज ने आर्गन7 से बात करते हुए हितेशा के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने बताया कि हितेशा को ऑर्डर देने के बाद वह पैसों का इंतजार करने लगे क्योंकि हितेशा ने कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चुना था और ट्रैफिक तथा सड़क खराब होने के चलते ऑर्डर लेट हो गया। इसके बाद कामराज ने हितेशा से माफी मांगी और शिकायत न करने का आग्रह भी किया, लेकिन हितेशा ने कामराज से बदतमीजी करी। जब कामराज ने इसका विरोध किया तो हितेशा ने कामराज को चप्पलों से मारना शुरू कर दिया। अपने बचाव में कामराज ने हितेशा के दोनों हाथों को पीछे झटक दिया, जिसके कारण हितेशा के हाथ में जो अंगूठी थी वह उनकी नाक पर लग गई और उनकी नाक पर अंगूठी लगने के कारण नाक के ऊपरी हिस्से से खून बहने लगा। यह सब देखकर कामराज डर गए और वहां से जाने लगे। जैसे ही वह लिफ्ट के पास पहुंचे तो हितेशा ने उन्हें दोबारा से चप्पलों से मारना शुरू कर दिया। जैसे तैसे कामराज सीढ़ियों के माध्यम से नीचे आए और जैसे ही वह नीचे पहुंचे तो उनके पास कस्टमर केयर की कॉल आई कि वह ऑर्डर अब कैंसिल हो चुका है। जब यह बात कामराज को पता लगी तो कामराज वहां से चले गए। इस पूरे मामले पर जोमेटो के फाउंडर दीपक गोयल का रिएक्शन आया। उन्होंने बताया कि हितेशा और कामराज दोनों की वह अपने स्तर से मदद कर रहे हैं, साथ ही साथ पुलिस के साथ भी कोऑपरेट कर रहे हैं ताकि पूरी जांच निष्पक्षता के साथ हो सके और सच सामने आ सके। उन्होंने यह भी कहा कि हितेशा के इलाज में जो भी पैसा खर्च होगा उसे कंपनी ही कवर करेगी। वहीं कामराज की भी जो भी मुमकिन मदद हो सकती है वह भी कंपनी ही करेगी। दीपेंद्र गोयल ने यह भी बताया कि प्रोटोकॉल के तहत कामराज को अस्थायी रूप से डिलीवरी करने हेतु सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन उनकी पेमेंट और लीगल चार्ज को कवर कंपनी के द्वारा ही किया जाएगा। अर्थात
कानूनी कार्रवाई में कामराज का जो भी खर्च आएगा उसे कंपनी ही अदा करेगी। उन्होंने बताया कि कामराज पिछले 26 महीनों से कंपनी के साथ कार्य कर रहे हैं और 5000 से ज़्यादा डिलीवरी भी कर चुके हैं। कामराज का 5 में से 4.7 का ओवरऑल रेटिंग अनुपात है, जो उनके प्लेटफॉर्म पर एक बेस्ट अनुपात माना जाता है। इस पूरे मामले का सच क्या है, कौन सही है कौन गलत, वह अब पुलिस की जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। अब आगे जो भी कार्रवाई होगी वह आप RVN7 के ज़रिए जान सकते हैं।